Hello students, this is Archana Gupta and you all are watching my channel Precious Biology Classes. Students, today we will discuss about the kingdom Monera. As you all know that R.H. Whitaker has classified whole kingdom or whole living world into 5 kingdoms. So these are what? These are Monera, Protista, Fungi, Animalia and Plant Kingdom. So this chapter, basically chapter number 2, that is biological classification of living world, that included these 5 kingdom classification, and we will discuss one by one these all kingdom one by one. Today we will discuss Monera. Look students, Monera. First of all, how we will learn about any kingdom. See students, you remember the examples of that particular kingdom, then easily you will understand the characteristics, or you can say that you can learn the characters of that particular kingdom. So whenever we will talk about Monera, whenever you think about Monera, just remember that bacteria are included in the Monera. And bacteria, if we are including bacteria in a Monera, means you can easily assume you have a clear picture of that bacteria, that what are the characteristics of bacteria. So students, on the basis of bacteria, if we will write the characters of that particular kingdom Monera, so Monera is having the members. Look students, every kingdom is having so many members. So likewise that Monera is also having so many members, means Monera में भी बहुत सारे members होंगे, मोस्टली वो क्या होंगे, बैक्टीरियाज होंगे, ठीक है, क्योंकि मोनेरा क्या है, सबसे प्रिमिटिव किंगडम है. आप देखिए मोनेरा जो है सबसे प्रिमिटिव किंगडम है, दैट्स व्हाई वी इंक्लूड ऑल बैक्टीरियाज इंक्लूड इन दिस पर्टिकुलर किंगडम. सो वी हैव टू फर्स्ट डिस्कस अबाउट द characters of this kingdom. Look students, Monera is actually including those organisms, those are unicellular in nature. Unicellular, you all know that those body is very simple and made up of only single cell. So Monera is including those organisms having unicellular body. Now prokaryotic, I told you that prokaryotic organisms are included in that particular category. Look students, you remember one thing, prokaryotic, P primitive, P पुराना, ओके, मीन्स सबसे पहले जो नेचर में अर्थ पर एग्जिस्ट हुए, जिनसे लाइफ हमारी ओरिजिनेट होती है, वो हम कहते हैं कि बैक्टीरिया से ही ओरिजिनेट होती है. अभी आगे हम आप बात करेंगे साइनोबैक्टीरिया की बात करेंगे नेक्स्ट क्लास में. तो साइनोबैक्टीरिया जो है वो प्रिमिटिव है और वही क्या होता है, वहीं से हमारी लाइफ क्या होती है, ओरिजिनेट होती है. तो आप 12th क्लास में भी इसके बारे में पढ़ेंगे. तो राइट नाउ तो यू जस्ट रिमेम्बर कि यूनिसेलुलर होते हैं, प्रोकैरियोटिक होते हैं, स्मॉलेस्ट होते हैं. लुक स्टूडेंट्स, you all know that bacteria are microscopic in nature, means you cannot see those bacteria with the help of your naked eyes only, means you need microscope for that. Means these organisms included in the Monera kingdom, they are microscopic in nature. You can see smallest organism on the earth, and you need microscope for seeing these bacteria, or you can say the members of Monera. Now look students, plentiful means you all know that microorganisms are abundant in number in the nature. You all know कि अगर हम अपने हाथ में भी अगर इमेजिन करें ना, अगर आप इसको ऑब्जर्व करें माइक्रोस्कोप में या आप देखें, तो इसमें वैसे आपको नहीं दिखाई दे रहे, लेकिन प्लेंटीफुल ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म आर देयर, मीन्स इतने बैक्टीरियाज अभी भी आपके हाथ पर होंगे जो आपको भी नहीं दिखाई दे रहे होंगे. तो यू कैन इमेजिन कि पूरा हर जगह, हर सरफेस पर कितने बैक्टीरियाज और कितने ऑर्गेनिज्म जो होंगे हमारे सराउंडिंग में प्रेजेंट होंगे. मीन्स आप कह सकते हैं कि बहुत सारे नंबर में ये ऑर्गेनिज्म जो होते हैं वो प्रेजेंट होते हैं. नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट कैरेक्टर व्हेन यू हैव स्टडीड इन जूनियर क्लासेस, प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक में आपने डिफरेंस पढ़ा होगा. तो आपने पढ़ा होगा कि प्रोकैरियोट्स में ट्रू न्यूक्लियस नहीं होता है और प्रोकैरियोट्स में मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स नहीं होते हैं. ये आपने छोटी क्लास में पढ़ा है. तो ऑब्वियसली जब हम यहाँ कह रहे हैं कि मोनेरा प्रोकैरियोटिक है, तो इसका कैरेक्टर मेन क्या हो जाएगा, दैट ट्रू न्यूक्लियस और मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स प्रेजेंट नहीं होंगे. तो ये तो बिल्कुल सिंपल सा कैरेक्टर हुआ. तो देखो आप
बैक्टीरिया से और प्रोकैरियोट वर्ड से कितनी सारी चीज़ें याद कर सकते हो। जनरल कैरेक्टर्स ही पूछे जाते हैं, इसमें इतना परेशान होने वाली बात नहीं है, सिर्फ जनरल कैरेक्टर्स पूछे जाते हैं। तो ये हो गया हमारा। फिर इसकी जो वॉल होती है, अगर आपने जूनियर क्लास में थोड़ा सा भी अगर आपको आइडिया हो तो इसकी वॉल जो होती है वो रिजिड होती है, मतलब हार्ड कवरिंग होती है। आपने कैप्सूल के बारे में भी सुना होगा कि बैक्टीरिया के ऊपर जो कवरिंग होती है वो उसकी हार्ड होती है, जिसमें आपने थोड़ा सा शायद स्टेनिंग के बारे में पढ़ा होगा। अभी अपन आगे भी पढ़ेंगे थोड़ा सा अभी अपनी आगे वाली क्लासेस में स्टेनिंग के बारे में। तो आप इतना भी याद रखो कि जो बैक्टीरिया होता है उसके सराउंडिंग में क्या होता है, हार्ड कवरिंग होती है जो रिजिड होती है, जो उसको क्या करती है, प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है। ओके, नाउ नेक्स्ट इज Monera is following, or we can say Monera's member as performing mode of nutrition. Okay, so mode of nutrition मीन्स क्या हुआ कि वो कितने मोड ऑफ न्यूट्रिशन है, उसको वो किस तरीके से उसका जो फूड टेकिंग है या किस तरीके से वो अपने फूड को बॉडी में इंजेस्ट कर रहा है या कैसे उसको यूटिलाइज कर रहा है। तो जो ऑर्गेनिज्म होते हैं, जो मोनेरा के मेंबर्स होते हैं, वो क्या है, 2 टाइप्स ऑफ मोड ऑफ न्यूट्रिशन को फॉलो करते हैं, दैट इज ऑटोट्रॉफ्स एंड हेटेरोट्रॉफ्स। लुक स्टूडेंट्स, ऑटोट्रॉफ्स एंड हेटेरोट्रॉफ्स यू ऑल नो वेरी वेल कि ऑटोट्रॉफ्स में ऑर्गेनिज्म क्या करेगा, अपना खाना खुद बनाएगा, जैसे प्लांट्स हमने पहले पढ़ चुके हैं। हेटेरो में क्या होगा कि वो दूसरों के ऊपर डिपेंड करेगा। अब हम ज़्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे, बट स्टिल आपको ये पता होना चाहिए कि मोनेरा के जो मेंबर्स हैं, देखो मोनेरा में बहुत सारे मेंबर्स हैं, तो कुछ मेंबर जो होंगे वो ऑटोट्रॉफ्स को फॉलो करेंगे, कुछ जो होंगे वो हेटेरोट्रॉफ्स को फॉलो करेंगे। ऑटोट्रॉफ्स में भी 2 तरीके के हो सकते हैं, जैसे कि फोटो ऑटोट्रॉफ्स और कीमो ऑटोट्रॉफ्स। अब फोटो ऑटोट्रॉफ्स क्या हुए, जो सनलाइट की हेल्प से क्या करेंगे, अपना फूड खुद बनाएंगे। और कीमो ऑटोट्रॉफ्स क्या होंगे, जिनकी बॉडी में क्या होंगे, जिनकी बॉडी में कुछ केमिकल रिएक्शंस होंगी, बॉडी में क्या होंगी, कुछ केमिकल रिएक्शंस होंगी, जिसकी हेल्प से वो अपना फूड क्या करेंगे, खुद बनाएंगे। कहने का मतलब क्या हुआ कि फोटो ऑटोट्रॉफ्स सनलाइट की हेल्प से अपना खाना बना रहे हैं, पर खुद बना रहे हैं। और कीमो ऑटोट्रॉफ्स में क्या हो रहा है कि वो केमिकल रिएक्शंस उनकी बॉडी में हो रही है, जिसकी हेल्प से वो क्या कर रहे हैं, अपना खाना खुद बना रहे हैं। ठीक है, और हेटेरोट्रॉफ्स क्या होंगे, मीन्स जो दूसरों पर डिपेंड करेंगे। अब इसमें भी जो दूसरों पर डिपेंड करेंगे वो क्या होंगे, पहला टाइप क्या हो गया, फ्री लिविंग, नॉर्मली जो होगा फूड इनटेक करेंगे, दूसरों पर डिपेंड करेंगे। ठीक है, सिम्बायोटिक मीन्स, ये भी थोड़ा सा आपको आइडिया होगा, आगे और क्लियर हो जाएगा। सिम्बायोटिक जो क्या हो गए, सिम्बायोटिक रिलेशनशिप में रहेंगे। कहने का मतलब 2 ऑर्गेनिज्म होंगे, 2 मोनेरा के ऑर्गेनिज्म होंगे, और वो क्या करेंगे, एक साथ रहेंगे, एसोसिएशन में रहेंगे, और दोनों एक दूसरे को क्या करेंगे, बेनिफिट पहुंचाएंगे। ठीक है, पैरासिटिक वर्ड आपको समझ में आता है कि एक दूसरे के ऊपर बिल्कुल होस्ट और प्रे वाली रिलेशनशिप रहेगी। तो इस तरीके से आपको क्या मिलेगा, यहाँ पर हेटेरोट्रॉफ्स में डिफरेंट टाइप्स मिलेंगे। तो मोनेरा के जितने भी मेंबर्स हैं, बहुत सारे मेंबर्स हैं, आप इमेजिन करो बैक्टीरिया बहुत सारे हैं नेचर में, तो डिफरेंट मेंबर्स जो होंगे वो डिफरेंट मोड ऑफ न्यूट्रिशन को फॉलो करते हैं। ठीक है, तो दिस इज नॉट वेरी इंपॉर्टेंट, बट स्टिल यू ऑल नो कि कितने टाइप के न्यूट्रिशन होते हैं या इसके जनरल कैरेक्टर्स क्या होते हैं। अब देखिए, अब आपकी एनसीईआरटी में एक्चुअली में स्टूडेंट्स मोनेरा को क्लासीफाई किया हुआ है 2 कैटेगरीज में। लुक स्टूडेंट्स, एक्चुअली यहाँ बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए ये जानना कि मोनेरा जो है वो क्लासीफाई तो बहुत सारी कैटेगरीज में किया गया है, बट अगर आप अपनी एनसीईआरटी को देखेंगे तो एनसीईआरटी में आपको ये जो क्लासिफिकेशन मिलेगा वो कुछ इस तरीके से, that Monera has been classified into 2 categories, that is Eubacteria. Eubacteria is also known as true bacteria, and another one is Archibacteria, or we can say ancient bacteria. Now look students, Eubacteria or true bacteria is again divided into 2 types, that is several subgroups of bacteria and cyanobacteria. Now what happened in your book, आपकी बुक में यूबैक्टीरिया अलग से दिया हुआ है और उसके अंदर इस साइनोबैक्टीरिया को क्या किया हुआ है, एक्सप्लेन किया हुआ है। साइनोबैक्टीरिया भी एक्सप्लेन किया हुआ है उसके अंदर, और ये जो सेवरल सब ग्रुप्स ऑफ बैक्टीरिया उसे भी एक्सप्लेन किया है। प्लस आपके उसी मोनेरा किंगडम में अलग से आर्चीबैक्टीरिया को भी इंक्लूड किया है। तो आपको एक विजन क्लियर होना चाहिए कि क्या चीज़ हमें किसके अंदर पढ़नी है। एक्चुअली मोनेरा के अंदर यूबैक्टीरिया है, और यूबैक्टीरिया में हमारे डिफरेंट सब ग्रुप्स ऑफ बैक्टीरिया है, और फिर साइनोबैक्टीरिया है। अब हम क्या करेंगे, 1 बाय 1 इन तीनों चीज़ों को पढ़ेंगे।
ठीक है। अगर हम इन दोनों को अलग अलग पढ़ लेंगे तो हमारा ये वाला टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा, और आर्ची बैक्टीरिया हम अलग से पढ़ेंगे ही पढ़ेंगे। तो सबसे पहले आज के हम जो है वो डिस्कस कर रहे हैं, वो क्या कर रहे हैं, सेवरल सब ग्रुप्स ऑफ बैक्टीरिया को डिस्कस कर रहे हैं, और नेक्स्ट वीडियोज में फर्दर क्लासेस में हम साइनोबैक्टीरिया और आर्ची बैक्टीरिया को डिस्कस करेंगे। तो फर्स्ट वी विल स्टार्ट विद द सेवरल सब ग्रुप्स ऑफ बैक्टीरिया। Look students, bacteria is classified into different forms, means उसके स्ट्रक्चर और शेप के बेस पर। रिमेंबर, बैक्टीरिया को उसके स्ट्रक्चर और उसके शेप के बेस पर हम क्लासीफाई कर सकते हैं 4 टाइप्स में, ठीक है। अब हम इसको 4 टाइप्स में डिवाइड कर सकते हैं। देखो बैक्टीरिया हमें मालूम है कि एक्सट्रीम कंडीशन में सर्वाइव कर सकता है। आप देखो बहुत हार्श क्लाइमेट में भी सर्वाइव कर सकता है, चाहे कितना भी टेम्परेचर हो, कितना भी पीएच हो, आप देखो हर जगह आपको ये बैक्टीरिया मिलेगा। तो इसके हिसाब से इस बैक्टीरिया की डिफरेंट शेप्स भी होती हैं, और उन शेप्स के बेस पर हम इस बैक्टीरिया को क्लासीफाई कर सकते हैं। आपकी बुक में ये डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन अलग से दिया हुआ है। कई बार ये पूछा जाता है कि कौन सा वाला टाइप का बैक्टीरिया है, ठीक है। तो सेवरल सब ग्रुप्स ऑफ डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ बैक्टीरिया में हम सबसे पहले बात करते हैं कोकस से, ठीक है। कोकस जो है वो क्या है, सिंगुलर फॉर्म है, उसका प्लूरल जो होता है वो कोकाई होता है। देखिए जो कोकस है एक्चुअली में ये जो बैक्टीरिया होता है वो स्फीयर शेप या ग्लोबुलर शेप होता है, मतलब इसका जो शेप है वो गोल होता है, ठीक है, ग्लोबुलर शेप होता है, और इसके इसी शेप की वजह से हम इसे कोकस बोलते हैं। लोग स्टूडेंट्स, एक्चुअली हम यहाँ प्लूरल और सिंगुलर का यूज क्यों कर रहे हैं, क्योंकि क्या होता है बैक्टीरिया खुद क्या होता है, बहुत छोटा होता है। तो ये कई बार अकेले भी होता है, लेकिन मोस्टली ये क्या करता है, कॉलोनीज बना के रहता है या ग्रुप्स में रहता है, ठीक है। अब वो जो ग्रुप्स होगा, जैसे अगर हम ग्लोबुलर की बात कर रहे हैं तो वो जो ग्रुप के फॉर्म में है तो वो भी डिफरेंट तरीके से होगा। तो जैसे कि डिप्लोकोकस, डिप्लोकोकस मतलब क्या हुआ कि जो 2 बैक्टीरिया है या 2 ग्लोबुलर शेप बैक्टीरिया है या कोकाइकोकस है, वो दोनों साथ में है, ठीक है। जब 2 साथ में हो गए तो क्या हो गया, डिप्लोकोकस हो गया। अब दूसरा क्या है, स्टेफाइलोकोकस। स्टेफाइलोकोकस में क्या होता है कि ये जो कोकस शेप बैक्टीरिया है वही क्या रहता है, ग्रुप बना के रहता है, मतलब बहुत सारे बैक्टीरिया जो हो गए वो एक साथ क्या है, गैदर्ड है। आप देखो बहुत सारे बैक्टीरिया एक साथ क्या है, इकट्ठे होकर रह रहे हैं, ठीक है। तो ये क्या हो गया, स्टेफाइलोकोकस। और तीसरा कौन सा हो गया हमारा, स्ट्रेप्टोकोकस हो गया। स्ट्रेप्टोकोकस में क्या है, देखो फर्क देखो, यहाँ क्या है, ये ग्रुप बना के रह रहा है, और ये क्या है, सिंपल चेन के फॉर्म में है। तो जब चेन की फॉर्म में है तो क्या हो गया, स्ट्रेप्टोकोकस। जब ग्रुप के फॉर्म में हो गया तब ये क्या है, स्टेफाइलोकोकस। तो ये क्या हो गया हमारा, कोकस के फॉर्म में हो गया। अब हमारा नेक्स्ट जो होगा वो क्या हो गया, अब हम नेक्स्ट डिस्कस करते हैं बेसिलस के बारे में, ओके। तो देखो सेकंड जो है वो हमारा क्या है, बेसिलस, ठीक है। तो बेसिलस जो है वो फिर से क्या है, ये है सिंगुलर फॉर्म, और इसका जो प्लूरल फॉर्म होगा वो क्या होगा, बेसिलाई होगा। छोटी छोटी बातें हैं जो आपको ध्यान रखनी है कि बेसिलस सिंगुलर है और प्लूरल जो है वो बेसिलाई है, ठीक है। अब बेसिलाई मतलब क्या हो गया, ये होता है रॉड शेप, ठीक है। तो यहाँ जो हमने पहले बोला कि बैक्टीरिया क्या है, स्फेरिकल है या ग्लोबुलर शेप है, हम शेप के बेस पर ही तो पढ़ रहे हैं, और ये वाला कैसा है, सिलेंड्रिकल है और रॉड शेप्ड है। अब रॉड शेप्ड अगर बैक्टीरिया है तो इसमें हमको 2 टाइप देखने हैं। इसमें यहाँ पे पहला है हमारा डिप्लोबेसिलस और दूसरा क्या है, स्ट्रेप्टोबेसिलस। तो डिप्लो मतलब क्या हुआ कि दो जो होंगे वो बेसिलाई जो होंगे, 2 बेसिलस शेप जो बैक्टीरिया होंगे वो आपस में क्या होंगे, जुड़कर साथ साथ रहेंगे, ठीक है। और स्ट्रेप्टोबेसिलस क्या था, स्ट्रेप्टो में वहां पर क्या था, कोकाई वाले में भी चेन के फॉर्म में था ना, तो यहाँ पे बस क्या होगा कि रॉड शेप जो बैक्टीरिया है वो क्या है, चेन के फॉर्म में क्या होगा, अटैच होगा, जिसे हम क्या बोल रहे हैं, स्ट्रेप्टोबेसिलस। आपको पता है देखो जो स्ट्रेप्टोबेसिलस और हमने स्ट्रेप्टोकोकाई पढ़ा है, स्टेफाइलोकोकाई पढ़ा है। एक इंटरेस्टिंग बात आपको मैं बताती हूँ कि जो पिंपल्स वगैरह होते हैं, उन पिंपल्स में अगर हम बैक्टीरिया की बात करें ना तो डॉक्टर्स जो है वो यही बोलते हैं, देखो बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो गया होगा, तो वो जो उसका मेजर जो एजेंट होता है ना, वही जो स्टेफाइलोकोकाई और स्ट्रेप्टोकोकाई जो हमने बैक्टीरिया पढ़े हैं ना, इनसे ही वो इन्फेक्शन होता है। खैर चलो आगे बढ़ते हैं हम। देखो तो बेसिलस जो हो गया वो हो गया हमारा डिप्लोबेसिलस और स्ट्रेप्टोबेसिलस, ठीक है। थर्ड जो है वो है हमारा स्पाइरलम अगेन इसका प्लूरल क्या है, स्पाइरला। अब ये जो शेप है वो क्या होगा, कॉइल्ड और ट्विस्टेड होगा,
जस्ट लाइक कॉर्क स्क्रू देखा है ना, इस तरीके से ऐसे करके स्क्रू होता है, उसका जो उसके जैसा शेप जो होता है वो इस पर्टिकुलर बैक्टीरिया का होता है। तो आप देखो यहाँ पे इस तरीके से इसमें टर्न है, आप देखो कितना घूमकर ये जो है बैक्टीरिया का जो है वो शेप बना हुआ है। तो ये इसका पर्टिकुलर स्ट्रक्चर है, ये थर्ड टाइप हो गया हमारा स्पाइरल। और फोर्थ जो है वो है हमारा विब्रियम, जिसका प्लूरल होता है विब्रियो। और ये कैसा होता है, कॉमा शेप होता है, जैसे हम कॉमा बनाते हैं ना इस तरीके से कॉमा बनाते हैं, कुछ इस तरीके से हम कॉमा बनाते हैं। तो बस ये जो बैक्टीरिया होता है ये बस कुछ इसी तरीके से कॉमा शेप्ड बैक्टीरिया होता है, कर्व शेप्ड बैक्टीरिया। और देखो आप देखो मैंने कई जगह पर ये ऐसे करके थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर भी बनाए हुए हैं। तो आपको मालूम है कि बैक्टीरिया जो होता है कई बार उस बैक्टीरिया में फ्लैजिला भी प्रेजेंट होते हैं। फ्लैजिला क्यों प्रेजेंट होते हैं, मूवमेंट के लिए प्रेजेंट होते हैं। तो यहाँ पर मैंने कहीं कहीं पर इसमें फ्लैजिला को ड्रॉ कर रखा हुआ है। तो ये मत सोचना कि क्या ड्रॉ किया हुआ है, फ्लैजिला है जिसका काम क्या होता है मूवमेंट का। तो ये जो 4 टाइप थे, ठीक है, हमने 4 टाइप के बैक्टीरिया डिस्कस किया है। कौन कौन से, एक कोकस, एक हमने बेसिलस को डिस्कस किया, देन वी हैव डिस्कस्ड अबाउट स्पाइरलम, देन वी हैव डिस्कस्ड अबाउट विब्रियम। अब हम नेक्स्ट क्लास में हमें क्या डिस्कस करना है, एक साइनोबैक्टीरिया रह गया हमारा और फिर हमारा एक आर्चीबैक्टीरिया। लेआउट जरूर याद रखो बेटा, ये लेआउट जरूर याद रखना आपको जरूरी है कि हम एक्चुअली कहाँ हैं, हम पढ़ क्या रहे हैं, ठीक है। भूल मत जाना अपनी एनसीईआरटी को पढ़ते समय, ठीक है। एनसीईआरटी को ध्यान से पढ़ो और उसमें से आपको आराम से ये चीज़ें समझ में आएंगी। So that's all for today, student. So this is about this Monera kingdom. Not we have discussed completely. Next time we will meet. So just like my video and subscribe my channel. Thank you.